Welcome students again to our first chapter of class 10. That's it. That is chemical reactions and equations. Okay. So we have done first two parts of this chapter, and in the first part we have seen what are chemical equations and what are chemical reactions, and how to understand whether a change is giving chemical change, it will be a chemical change or it will be a physical change. ठीक है, हमने देखा कि केमिकल चेंजेस जो भी होंगे वो केमिकल रिएक्शंस के रूप में लिखे जा सकते हैं, राइट. सो केमिकल रिएक्शंस लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या, केमिकल इक्वेशन के टर्म में दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड. ओके, वी हैव सीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज and we have seen some features of chemical changes or chemical reactions also. Okay, then after that in the second part we have seen that what is balancing of a reaction and balancing करते क्यों हैं, correct. Balancing करने का reason, what is the balancing किस चीज़ की application है, किस law की application है, that is law of conservation of mass. Okay. Then we have seen what is the hit and trial method of balancing of a reaction, right, and we have done some questions also. So I believe you might have done some questions, you might have gone through some of your questions of NCERT in text questions. If you have any doubt you can ask me, I will be telling you in the next part, and if we will eventually we will be doing all the questions of NCERT in the end of the chapter. Okay. So this was the first, this was the part second slide. Okay, let's move to the further topic, that would be types of chemical reactions. Our next topic is types of chemical reactions. Okay, let's learn. So there are some types of chemical reactions that we will be learning in this chapter, that is combination reactions, decomposition reactions, displacement reactions, double displacement reactions, right. We will see exothermic reactions, endothermic reactions, we will see precipitation reactions, neutralization reactions, we will see redox reactions, that is it can be oxidation reaction or reduction reaction. All these things will be able to see in this chapter. अब देखो, अभी कंफ्यूज मत हो ना कि redox reaction, reduction, oxidation समझ नहीं आ रहा है, नाम ले लिया ऐसे ही, doesn't matter. I am just telling you what are the reactions that we are going to learn. So we will be starting with combination reaction. ठीक है, combination reaction is the first and most basic type of reaction that we know, that we learn. ठीक है, देखो combination reaction की definition क्या है. combination मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को combine कर दो और एक नया product बना दो. ठीक है, तो वैसे ही अगर हम दो reactants को combine कर लें और उसका एक नया product बना लें, तो क्या वो रिएक्शन नहीं हो जाएगी, क्या वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो जाएगी. क्यों? क्योंकि ये केमिकल चेंज हो रहा है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, राइट. सो व्हाट इज द डेफिनेशन, द रिएक्शंस इन विच दो, टू और मोर सब्सटेंसेस, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कंबाइंड, जुड़े टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब सबको पता होता है, राइट. जैसे अगर मैं अगर मैं दोनों टॉफ़ी को कंबाइन कर देती हूँ तो एक नई टॉफ़ी बन जाएगी, राइट. जैसे कि कभी कभी मिल्क एंड चॉकलेट टॉफ़ीज़ को कंबाइन करके मिल्क चॉकलेट टॉफ़ी बना देते हैं, चोको मिल्क, राइट. तो वैसे ही अगर हम दो रिएक्टेंट्स को कंबाइन कर दें तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है. दो ज़रूरी नहीं है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट. So what is the example of combination reaction? The very basic example that is given in your NCERT also. Actually that is calcium oxide when it is combines with water. ठीक है, calcium oxide is a solid, उसमें हमने water add किया, क्या होगा, basically both the compounds will be combining to each other. So वो क्या बनाएगा, slaked lime, जिसे हम calcium hydroxide भी कहते हैं, और हम एक और चीज़ कहते हैं, दैट इज लाइम वाटर. ठीक है, क्यों लाइम वाटर क्यों कहते हैं, क्योंकि क्विक लाइम हम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, तो लाइम वाटर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कह देते हैं. ठीक है, स्लेक्ड लाइम क्यों कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्लेक्ड. स्लेक्ड मीन्स हाइड्रेटेड. ठीक है, अगर कोई एलिमेंट है
उसमें वाटर ऐड किया, इफ इट इज हाइड्रेटेड नाउ so then it will be called as slaked. And since lime is CaO, so it is basically hydrated now, so that's why it is called as slaked lime. And why it is lime water I have already told you. ठीक है, so in this reaction is an example of combination reaction. ठीक है, अच्छा एक और चीज़ let me tell you कि generally combination reactions जो होती हैं, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, I would like to explain something. सपोज हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, ये दो A एंड B, ठीक है, A कोई एटम भी हो सकता है या मॉलिक्यूल भी हो सकता है, B भी कोई एटम या मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। अगर एटम इजी लग रहा है तो उसको इमेजिन कर लो, मॉलिक्यूल इजी लग रहा है तो उसको इमेजिन कर लो। सो बेसिकली एटम के बारे में क्लास 9th में पढ़ा होगा, उसके पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स बेसिकली आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, सो कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाकी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज दैट इज इलेक्ट्रॉन्स पे लगा सकते हैं, राइट। अच्छा देखो, न्यूक्लियर फोर्स इसीलिए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में बिकॉज प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, ओके। अब देखो न्यूक्लियर फोर्स क्या है, न्यूक्लियर फोर्स इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स इन अवर नेचर। दो एटम्स हैं, इफ दे आर कंबाइनिंग टुगेदर टू मेक अ बॉन्ड, है ना, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स, सो कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, बॉन्ड बना के फॉर्म होते हैं। अगर मैंने आयरन ऑक्साइड लिखा है तो एक्चुअली आयरन और ऑक्साइड के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म है, दैट्स वाई आयरन ऑक्साइड बना है, वेदर इट इज़ फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, राइट। सो वैसे ही अगर मैं दो एटम्स को कंबाइन कर दूं, दोनों एटम्स एक दूसरे के पास आए तो उनकी जो एनर्जी है वो कम होती है, वाई, टू मेक देम स्टेबलाइज्ड, ठीक है। ए बी की तरफ बढ़ रहा है, बी ए की तरफ, राइट। आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि ए ने बी से बॉन्ड बना ली, राइट। तो दिस इज अ कंपाउंड नाउ। Energy generally released when a compound is formed by the formation ऑफ न्यू बॉन्ड्स, ठीक है। न्यू बॉन्ड्स जब बनती हैं तो बेसिकली जनरली एनर्जी रिलीज होती है। अब देखो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, ये एक टाइप ऑफ रिएक्शन बनाती है। दिस रिलीजिंग ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सो व्हाट इज दैट काइंड ऑफ रिएक्शन, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Now what is exothermic reaction? See, exothermic reaction is a reaction in which heat energy will be released when product इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब देखो हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी है वो रिलीज क्यों होती है, सोचना, ठीक है। एग्जाम्पल फ्रॉम योर रियल लाइफ, अगर आपके पास ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है, सो वो आप ज़्यादा रिएक्टिव हुए या ज़्यादा स्टेबल हुए, जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा एनर्जी है सो यू विल बी मूविंग हेयर एंड देयर इन योर रूम, you'll either you spend your energy in playing or working like studying something, reading something, right,
or doing some fun activity, moving here and there, roaming around, right? You'll be spending your energy. So right now actually जब energy ज़्यादा है तो you are more reactive. और क्या समझ सकते हैं? Energy ज़्यादा है तभी आप किसी पे चिल्लाते हो, right? गुस्सा कब आता है? गुस्सा कब दिखा सकता है इंसान? जब वो उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, राइट? जिसके पास ऑलरेडी कम एनर्जी है, जो ज़्यादा स्टेबल है, वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, ओके? सो इफ़ यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी यू कैन स्पेंड इट एक्चुअली, ठीक है? सो जिसके पास ज़्यादा एनर्जी वो उतना ही कम स्टेबल, ठीक है? दैट मीन्स आई कैन राइट एनर्जी और सिंपली stability is inversely proportional to energy. That means energy अगर ज़्यादा है तो stability कम है, but reactivity is directly proportional to energy. Energy अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा reactive है, right? So अगर हमारी किसी भी reaction में energy रिलीज हो रही है बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, सो दैट्स अ गुड साइन. क्यों? क्योंकि हमारा जो कंपाउंड बनेगा, न्यू प्रोडक्ट बनेगा, दैट वुड बी स्टेबल, राइट? एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज डिक्रीज्ड, स्टेबिलिटी विल इंक्रीज, ठीक है? सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच heat energy will be released when product is formed, and it is a good sign. Why? Because it means our product will be stabilized, ठीक है? तो देखो ये जो रिएक्शन देखिए हमने, जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है? ये याद रखना. यहाँ पे देखो हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है. अगर हमारे प्रोडक्ट साइड में हीट इस तरह से लिखी है, सो दैट वुड बी कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. shows that reaction is exothermic, ठीक है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और भी देखेंगे इन फ्यूचर, विल बी स्टडीइंग मोर, ठीक है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के आगे एक और चीज यू कैन मेंशन इन योर नोट्स, दैट जनरली they are exothermic, okay? Fine, that's it. So that's it about a combination reaction, है ना? कुछ कुछ एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे, जैसे और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ योर NCERT बुक, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू आर सपोज टू लर्न इट, यू आर सपोज टू रिमेंबर इट, ठीक है? नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. जैसे ये बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, फॉर्मेशन ऑफ CO2 by burning of coal. So it's a combustion reaction. I told you what is a combustion reaction. This is the very basic combustion reaction that you learn. Plus I am telling you this in the section of combination reaction. So you can say this is both combination reaction plus combustion reaction, and I also told you once कि combination reactions are generally exothermic reaction. So this is combination plus combustion plus exothermic, okay? Don't get confused. Combustion reaction I have already told you, if you will take any carbon compound, or you can simply take carbon also, and you are burning it in presence of oxygen, it will be giving you CO2 and water. Since there is no hydrogen, it will not be giving you water. So carbon only gives you carbon dioxide, okay? Now this is combustion plus combination plus what? Combustion, combination plus exothermic. ठीक है? Formation of water में भी same case, right? It is actually hydrogen is now burning in presence of oxygen. So इसको आप combination plus exothermic बोल सकते हो, ठीक है? Water का formation. These are some examples of combination reactions. You should learn it. This is also one very good example in which NH3, that is ammonia. I told you what is ammonia gas, right? And how to form it by Haber's process. I told you in the previous class. So this is ammonia. It is reacting with hydrogen chloride, that is an acid,
and it will be forming NH4Cl, that is ammonium chloride. So here also stable compound has formed, and this is also a combination reaction. ठीक है. Formation of calcium carbonate. Calcium oxide, when it is reacting with CO2, it forms CaCO3, right? So basically it's also a combination reaction. You know, this reaction is actually having application in whitewashing. Whitewashing application. Right? वाइट वॉशिंग एप्लीकेशन मतलब क्या कि जैसे अगर हमें अपनी वॉल्स को लाइक वाइट कलर में करना है, ठीक है. CaCO3 बेसिकली इज कॉल्ड एज लाइमस्टोन, और इट कैन ऑल्सो कॉल्ड एज मार्बल. तो बेसिकली अगर वाइट कलर में अपने दीवारों को, वॉल्स को करना है, वॉश करना है बेसिकली, सो यू कैन डू दिस काइंड ऑफ रिएक्शन. ठीक है. क्विक लाइम को व्हेन वी विल बी पासिंग CO2 इन क्विक लाइम, it will be forming CaCO3, that is marble or limestone, and it is actually white in color. Now I would like to tell you about CO2, something just very easy. Test of CO2 gas. अब टेस्ट के नाम से घबरा मत जाना, तुम्हारा टेस्ट नहीं हो रहा है, CO2 गैस का हो रहा है, राइट. सो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा नहीं, राइट. तुम्हारा जो भी नाम है, तुम्हारा टेस्ट नहीं. अच्छा, कोई मैंने बताया था कि इवोल्यूशन ऑफ गैस इज एक्चुअली अ प्रूफ कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल चेंजेस हैपनिंग. तो कोई गैस अगर निकल रही है, मान लो कि हमें दिख भी रही है, जनरली हमें दिखती भी नहीं है, राइट. यू आर नॉट ऐसे बहुत अलग चश्मा नहीं है तुम्हारे पास कि तुमको दिख जाएगा कि गैस इवॉल्व हो रही है, लेकिन समटाइम्स दिखता है, ठीक है. तो जो गैस इवॉल्व हो रही है, हमें पता कैसे चलेगा कि वो गैस है कौन सी, वेदर इट इज़ H2, CO2, H2S, HCl, N2, what is it. मान लो कि हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि अच्छा CO2 गैस पास हो सकती है, मतलब CO2 गैस निकल सकती है. तो कैसे पता करेंगे, लेट्स सी. If we pass a gas from calcium hydroxide, right, lime water, and it turns it milky, then the gas is CO2 गैस. समझ रहे हो. तो बेसिकली हमारे पास एक बीकर में, सपोज हमारे पास एक बीकर में CaOH2 था, राइट. हमने क्या किया, इसमें से CO2 को पास कराया, यहाँ से एक ट्यूब लाए, CO2 को पास कराया. अगर CO2 के पास कराने पे हमारा जो सोल्यूशन है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, सॉरी नॉट लिक्विड, मिल्की लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है. सो दैट विल बी द टेस्ट फॉर CO2, दैट विल बी द कन्फर्मेशन ऑफ CO2. ठीक है. ये छोटा सा टेस्ट है, याद रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया, एग्जाम्पल्स देख लिए. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है. एग्जाम्पल्स कॉम्बिनेशन के देखे हैं हमने देखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ओनली, राइट. एंड वी हैव सीन सम अदर थिंग्स आल्सो लाइक टेस्ट फॉर CO2. नाउ व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन, ठीक है. डीकम्पोजिशन का मतलब, पहली बात तो डिक्शनरी खोल के देखो डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है. अच्छा, डीकम्पोजिशन का मतलब थोड़ा समझ में आया, राइट. नहीं समझ आया तो मैं बता देती हूँ. डीकम्पोजिशन इज काइंड ऑफ डिग्रेडेशन, और यू कैन से जो भी कंपाउंड है या कोई भी चीज़ प्रेजेंट है
वो डिग्रेड हो के किसी और चीज़ में बदल जाए। जैसे अगर आपकी लाइक यू नो कभी ऐसे सुना होगा कि डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज इज हैपनिंग, है ना। जैसे अगर कोई एनिमल है वो मर जाता है और इट इज़ प्रेजेंट इन आउटर सरफेस, मतलब उसे कहीं भी कहीं कुछ ढक के नहीं रखा गया एंड इट इज़ सिंपली प्रेजेंट इन द आउटर सरफेस इन अवर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वो डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देता है। बेसिकली वो देखो एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ chemical compounds only. So chemical compounds decompose होने लगते हैं and they will start forming something other, some other compounds. What are those compounds? We will see, don't worry, ठीक है। हाँ, डेड बॉडीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, कोई भी कंपाउंड है अगर वो डिकम्पोज हो रहा है in 2 or more than 2 compounds, then the reaction will be called as decomposition. So थोड़ा सोचो ज़रा, ये decomposition reaction जो है ये किससे related है। अभी हमने एक reaction पढ़ी, combination reaction. Decomposition reaction is just the opposite of combination reaction, do you think, है ना। combination में हम दो चीज़ों को add करके एक चीज़ बना रहे थे, decomposition में हम एक चीज़ से दो चीज़ें बना देंगे, दो या दो से अधिक, okay. So decomposition reaction in bracket you can say just opposite of combination, ठीक है, it's just opposite of combination, ठीक है। अच्छा फाइन, दैट्स ओके। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, बट बिफोर दैट यू शुड नो कि जो डिकम्पोजिशन होती है वो जनरली होता कैसे। देखो, जो डिकम्पोजिशन किसी भी चीज़ का करना है और कोई भी चीज़ एक्चुअली सपोज अ कंपाउंड इज देयर, कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो डिफरेंट कंपाउंड्स कंबाइन हो रहे थे एंड दे आर फॉर्मिंग अ न्यू कंपाउंड। डिकम्पोजिशन में जस्ट उल्टा हो रहा है, इसका मतलब एक ही कंपाउंड टूट रहा है किन्हीं दो कंपाउंड्स में। किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए क्या हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, राइट, ऑफ कोर्स। जस्ट ट्राई टू ब्रेक द पेन दैट इज़ इन योर हैंड, ठीक है, सच में मत तोड़ देना। कोई भी ऐसी चीज़ लो जो जैसे सिंपल सी कोई भी चीज़ लो, एनर्जी लगती है किसी भी चीज़ को तोड़ने में, ठीक है। सिमिलरली किसी भी कंपाउंड को ब्रेक होने में भी एनर्जी लगेगी, डिकम्पोज होने में भी एनर्जी लगेगी, राइट। सो बेसिकली इन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, दीज आर द रिएक्शंस in which one compound will be breaking down to two or more products by absorption of some energy, ठीक है। कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो कंपाउंड 1 or 2 और मोर प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है। अब कौन कौन सी एनर्जीज हो सकती है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए फिर आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा जो मोशन में हो, राइट। पोटेंशियल एनर्जी लाइक दैट इट्स डज नॉट लाइक दैट मच ट्रांसफरेबल फॉर दीज कंपाउंड्स, ठीक है, दीज केमिकल कंपाउंड्स। तो बेसिकली 3 टाइप की एनर्जी वी विल बी यूजिंग, टाइप्स ऑफ एनर्जीज। What are the types of energies? Thermal energy,
ठीक है, थर्मल एनर्जी. व्हाट एल्स? फोटो केमिकल एनर्जी, है ना, और तीसरी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. राइट. तो देखो तीन टाइप की एनर्जी, थर्मल एनर्जी दैट वुड बी हीट एनर्जी, फोटोकेमिकल एनर्जी दैट वुड बी लाइट एनर्जी, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट वुड बी, दैट्स इजी, इलेक्ट्रिसिटी से जो एनर्जी मिलेगी दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है. सो ये तीनों एनर्जीज के डिफरेंट डिकम्पोजिशन होते हैं, लाइक थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. राइट. एंड वो क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, वी विल सी. बट बिफोर लर्निंग दैट, लेट्स लर्न वन मोर रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एनर्जी, हीट एनर्जी or any type of energy can be absorbed. ठीक है. I told you that a reaction in which energy will be released will be called as exothermic reactions. But what about a reaction in which energy will be absorbed? So that will be called as endothermic reactions. एंडोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर. एंडोथर्मिक हीट को अंदर लेना, हीट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन करना. सो द रिएक्शंस in which heat energy, or sometimes you can say any kind of energy, right, is absorbed are called as endothermic reactions. ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस. अब इसमें पता कैसे चलता है, जब रिएक्टेंट्स के साइड पे रिएक्टेंट्स लिखे हो प्लस हीट लिखा हो एंड एरो देन प्रोडक्ट्स. ठीक है. तो इसका मतलब बेसिकली जो हीट है वो हमने ऐड की है रिएक्टेंट्स में. राइट. रिएक्टेंट्स को हीट बेसिकली कंबाइन किया, हीट दी गई एंड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ. एक नोट करके एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिखना, generally, or you can write, you should not write generally, you'll just write all decomposition reactions are endothermic reactions. ठीक है. क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है. क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में अभी मैंने बताया कि एनर्जी लगेगी कंपाउंड को तोड़ने में, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन में मैंने बताया कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. दैट्स व्हाई वी विल से कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस. नाउ ठीक है, ये इतना समझ में आ गया. बट व्हाट आर द एग्जांपल्स वी हैवंट सीन, सो यू विल सी द एग्जांपल्स नाउ. राइट. लेट्स कंटिन्यू. ओके, sorry, one second. Fine. So as you can see, we are learning thermal decomposition. Thermal decomposition is the decomposition in which heat energy will be given to a compound, and it will be forming different compounds, different new products. ठीक है. जैसे एक example है iron sulfate. Right? It is actually green in color. We will be learning this in displacement reaction also. So iron sulfate is actually green in color.
ठीक है, हमने इसको हीट एनर्जी दी, इट विल बी ब्रेकिंग डाउन इनटू आयरन ऑक्साइड दैट इज ब्राउन इन कलर, you have to remember this, and it will be giving SO2 and SO3 also, that is sulfur dioxide and sulfur trioxide also. ठीक है, this is the reaction of NCERT, that's why it's very important. Now another, lead nitrate. Lead nitrate is also a compound, let me write it, this is ferrous sulfate. ठीक है, it would be ferric oxide. This is sulfur dioxide, sulfur trioxide. This is lead nitrate. This is lead oxide, yellow color, right? So you are supposed to remember this also कि lead oxide जो होता है वो yellow color का form होता है, and you know this nitrogen dioxide has reddish brown fumes. So nitrogen dioxide की reddish brown fumes निकलती हैं. This is a kind of test of NO2, है ना. हमने टेस्ट ऑफ CO2 पढ़ा था कि लाइम वाटर को मिल्की बना सकता है CO2. सिमिलरली NO2 का पता कैसे चल सकता है, अगर किसी भी रिएक्शन में रेडिश ब्राउन गैस निकल रही है, सो वी कैन से दिस इज NO2. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. ओके, दैट वुड बी इलेक्ट्रोलिटिक बेसिकली. जस्ट वेट. हाँ, देयर इज वन मोर रिएक्शन, लेट मी राइट इट. In thermal decomposition, we are learning thermal decomposition only. ठीक है, so the second reaction would be the another reaction will be calcium carbonate. When it is 3 CaCO3, when it is heated, is the sign of heating, so it will be giving you calcium oxide प्लस CO2. ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने इसका जस्ट अपोजिट पढ़ा था, डिकम्पोजिशन में इस तरह से. डिकम्पोजिशन इज जस्ट ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ कंपाउंड, राइट. सो अभी तक हमने देखो कौन सी रिएक्शन देखी, CO2 का टेस्ट क्या होता है ये हम अच्छे से जानते हैं, राइट. अभी तक हमने थर्मल डिकम्पोजिशन में 3 रिएक्शन देखी, सल्फेट की, नाइट्रेट की एंड कार्बोनेट की. ठीक है, तो एक चीज़ नोट करके लिख लेना, कि मेटल कार्बोनेट्स जब होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम इज अ मेटल कार्बोनेट, व्हेन दे आर हीटेड मीन्स थर्मल डिकम्पोजिशन अगर उनका किया जाए तो इट विल बी फॉर्मिंग मेटल ऑक्साइड प्लस CO2. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें मेटल सल्फेट, any metal sulfates, when they will be heated you can write metal oxide again plus SO2 plus SO3. ठीक है, metal nitrates heated forms metal oxides प्लस NO2 प्लस O2. अब देखो बैलेंस यहाँ तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा मेटल है, बट बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आफ्टर राइटिंग दिस रिएक्शन, अगर कोई भी मेटल कार्बोनेट, सल्फेट्स या नाइट्रेट्स पता हो या पूछा गया हो, सो यू कैन मेक मेटल ऑक्साइड and you can evolve these kind of gases in respective compounds, right. And now you can easily write some reactions by yourself, some reactions of thermal decomposition by yourself. So what you can do,
You can make some carbonates like lead carbonate or iron potassium carbonate, right? Similarly, you can make sulfates like aluminum sulfate and do their thermal decomposition. That will be one of your homework. Okay, we will be doing some more questions in the end of the chapter. Let's move further. Okay, so what is electrolytic? Now the next part of decomposition reaction is electrolytic decomposition reaction. Okay, in electrolytic decomposition reaction, it is a reaction by which a compound will be broken into two or more compounds by the application of electricity. ठीक है, कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. देखो इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस सुना तो होगा पर इसका मतलब नहीं पता होगा. ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मतलब टू ब्रेक डाउन. लिसिस मतलब टू ब्रेक डाउन. ठीक है, डाउन भी लिख सकते हो. तो मतलब कि अगर मुझे लिसिस करनी है बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी से अगर मुझे कुछ ब्रेक करना है, सो दैट वुड बी इलेक्ट्रोलिसिस. सो इलेक्ट्रोलिसिस में जनरली कंपाउंड्स का ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है टू गिव डिफरेंट वन और मोर कंपाउंड्स. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब देखो NaCl का यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है. इसे बेसिकली H2O नहीं लिखा जाता, इसे पूरा देखें तो इसे एक्चुअली ब्राइन सोल्यूशन लिखा जाता है. ठीक है, NaCl और वाटर का सोल्यूशन ब्राइन सोल्यूशन होता है. तो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में NaOH, H2 एंड Cl2 देता है. दिस इज वन रिएक्शन, वन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. The example that is present in your NCERT first chapter is electrolysis of H2O. ठीक है, this is electrolysis of H2O. ठीक है, तो आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द एग्जाम्पल्स. अभी हमने इलेक्ट्रोलिसिस अच्छे से नहीं पढ़ा है, हम पढ़ेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस में. जस्ट वेट. ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर नाउ विल बी लर्निंग इन डिटेल. सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर, and I have just written the reaction. It will be broken down into hydrogen and oxygen because these are the two substances by which water can be formed, right? So अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस में कुछ चीज़ें हैं जो तुमको पता होनी चाहिए. क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? रिक्वायरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. एक बीकर चाहिए ही होगा, है ना. वाटर चाहिए ही होगा क्योंकि वाटर को तो तोड़ना ही है. तीसरा इलेक्ट्रोड्स एंड चौथा बैटरी. ठीक है, अब देखो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं जो लिखी हैं, पर इलेक्ट्रोड्स नहीं आता. इलेक्ट्रोड्स मैम नहीं मालूम क्योंकि कभी पढ़ा नहीं. तो चलो देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोड्स होता क्या है. राइट, इलेक्ट्रोड्स are actually rods of metals generally. ठीक है, rods होती हैं, metals की हो सकती हैं, can be made up of graphite. graphite मालूम है? पेंसिल जो तुमने पकड़ी हुई है उसमें जो ग्रे कलर का मैटर है वो ग्रेफाइट है. ठीक है, सो रॉड्स ऑफ मेटल्स जनरली मेटल्स की रॉड्स हैं बट कैन बी मेड अप ऑफ ग्रेफाइट ऑल्सो. ठीक है, चलो लेकिन ये इलेक्ट्रोड्स
मतलब अभी भी सही से समझ नहीं आ रहा है रॉड्स का मतलब क्या। तो देखो मेटल, कोई भी मेटल है, सिंपली अगर मान लो ये पेन है, अगर ये केवल आयरन से बना होता तो मैं इसको भी रॉड की तरह यूज़ कर सकती थी, ठीक है। वैसे ही सिंपली तुम कोई भी रॉड ले लो, कोई भी ऐसे कोई भी मेटल ले लो, उसको इस फॉर्म में बना दो कि वो रॉड की तरह लगे, सो दैट विल बी अ मेटल रॉड, राइट। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रोड्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। एनोड, कैथोड। इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अच्छा, पर मैम ये तो मेटल से बन रही थी, ये जो एनोड और कैथोड, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये तो मेटल से बनती हैं, तो मेटल्स में चार्ज कैसे आ सकता है? कैसे? इफ the rod is connected to the positive terminal of battery, this rod is connected to positive terminal of battery, ठीक है ना। अगर किसी भी चीज़, कोई न्यूट्रल चीज़ है, उसको किसी पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट कर दो तो वो जो न्यूट्रल चीज़ है वो भी पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। तो जो पहले एनोड थी वो एक्चुअली न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था, पर जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, एनोड पहले वो था ही नहीं, पहले वो सिंपल रॉड था, मेटल रॉड, उसको अगर मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो वो एनोड बन गया, अगर वही नेगेटिव टर्मिनल से किया तो कैथोड बन गया, ठीक है। सो कैथोड इज connected to negative terminal, है ना, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सो आई बिलीव इलेक्ट्रोलिसिस में इतनी चीज़ें समझ आ रही हैं, और ज़्यादा समझ आएंगी जब हम डायग्राम देखेंगे। चलो देख लेते हैं जल्दी से। देखो, मान लो बीकर है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो ऑब्वियसली वाटर होगा। रॉड्स बना लेते हैं, थोड़ी टेढ़ी बन गई है, ठीक है, राइट, सीधा कर लो। सो ये है कैथोड, ये क्या है? एनोड। मैंने बताया था एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव, ठीक है। अब देखो, ये जो है वो कनेक्टेड है बैटरी से, यहाँ है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल, दैट्स वाई कैथोड नेगेटिव है और एनोड पॉजिटिव है, राइट। चलो, H2O, जब H2O ब्रेक होता है तो एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि H2O, सिंपल H2O नहीं प्रेजेंट होता। हियर वी हैव एसिडिफाइड H2O। वाई? क्यों हम एसिडिफाइड H2O लेते हैं? चीज़ ध्यान रखना, एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास H+ आयंस होते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस प्रेजेंट करते हैं, बियर करते हैं, ठीक है, राइट। जैसे इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तुम्हारे पास एक पेन तो ज़रूर होगा, दैट इज़ वन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन। सो एसिड्स की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि वो जैसे ही वाटर में जाते हैं वो क्या देते हैं? H+ आयंस। तो जब वाटर के साथ H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं तो बेसिकली ये जो है ना, ये थोड़ा चार्ज्ड हो जाता है। मैंने बताया था कि अगर
कोई न्यूट्रल सब्सटेंस है उसको किसी चार्ज सब्सटेंस में रखोगे तो वो भी चार्ज हो जाएगा। सो ये बन जाता है काइंड ऑफ H3O+, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोनियम कहते हैं। समझ नहीं आ रहा हो तो नेक्स्ट पार्ट में पूछ सकते हो, बट बेसिकली हमें एसिडिफाइड H2O इसलिए लेना होता है क्योंकि अगर हम सिर्फ H2O लेते हैं तो H2O जनरली आयंस में ब्रेक नहीं हो पाता। Here with the help of H+, it can break into ions. Now this can be broken down into easily H+ and OH-. To break down H2O in H+ and OH- easily, we have to supply some extra amount of H+ from some other source. कैसे, क्या सोर्स हो सकती है? कोई भी एसिड, HCl ले लो, हो सकता है, ठीक है। चलो, अब जब H2O है हमारा, वो ब्रेक हो रहा है H+ और OH- में, OH- आयंस में। सो अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है। OH- आयंस कहाँ जाएगा? क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये कहाँ जाएगा, मतलब कैथोड या एनोड कहाँ जाएगा? नेगेटिव है तो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, एनोड की तरफ जाएगा, ठीक है। H+ से पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, कैथोड की तरफ जाएगा, राइट। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, नोट, H+ से हमेशा H2 गैस बनेगी और OH- से हमेशा O2 गैस, ठीक है। H+ से H2 गैस, OH- से O2 गैस। सो मतलब हमारे H+ कहाँ जा रहा है? कैथोड पे, तो कैथोड पे तो we will get the formation of H2 गैस और एनोड पे तो we will have the formation of O2 गैस, right? Yes, of course. So अभी हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि कौन सी गैस कहाँ इवॉल्व हो रही है, कैथोड या एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है। दूसरी चीज़, बाय द रिएक्शन H2O gives 2H2 plus O2, ठीक है। रिएक्शन से हमें ये पता चलता है। तो in your exam they will be asking what is the ratio of H2 and O2 gas, what is the ratio of volume of H2 and O2 gas. Now simply we can say that in the product 2H2 is formed and in the product only one O2 is formed. So the ratio of H2 and O2 will be 2:1. Whether it is the ratio, it should be the ratio by number or by volume, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या पूछने का तरीका हो सकता है? कैथोड पे जो गैस इवॉल्व हो रही है और एनोड पे जो गैस इवॉल्व हो रही है उनका रेशियो क्या है? 2:1। कैथोड पे H2 है, एनोड पे O2। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शंस देते हैं, क्या प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस रेशियो में देते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। So that is electrolytic decomposition of H2O. Let's do some questions. See, in the electrolysis of water, name the gases liberated at anode and cathode. So we have just seen anode पे क्या निकलेगा? O2, cathode पे H2, ठीक है। ये देखा था, देख लो एक बार। कैथोड पे H+ जाएगा, OH- एनोड पे, ठीक है। Why is it that volume of gas collected on one electrode is 2 times than that on the another electrode? By the reaction itself, by the balanced reaction itself, right? So reaction क्या है? 2H2O gives 2H2 plus O2. So simply that's why one gas volume of one gas is 2 times the volume of other gas. And the last one is, if dilute H2SO4 is not added, electrolysis will not take place. Why? So I have told you H2SO4 is actually an acid.
we can take HCl also. ठीक है. If acid is not added, H2O can't break into H plus and OH minus ions easily. ठीक है, that's it. That's it for electrolysis. We have seen a lot of questions. We have seen all the important things, and I believe there will nothing be out of these 4 slides in your examination. Okay, and this electrolysis of brine solution, as you can see, sorry, one second here. So this you will be learning in chapter number 2. Fine. Well, I will tell you that कैसे NaCl और NaCl aqueous solution of NaCl break down होता है और H2Cl2 और NaOH का formation होता है. ठीक है, chapter number 2 में. Fine. Next, last decomposition reaction is photolysis. ठीक है, this is the last decomposition reaction, and this decomposition reaction is the reaction by which breaking down or decomposition of a compound happens and the formation of 2 or more than two products occur by the help of light energy. ठीक है, so photo means वो photo नहीं जो कैमरे से खींची जाती है, this is light. Photo means light. ठीक है, lysis मतलब to break down. So light से अगर break down करते हो किसी भी compound को, so that would be photolysis. ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हो? Photochemical decomposition भी बोल सकते हो. इसके सिंपल से एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में AgBr और AgCl दिए हुए हैं, राइट. AgBr सिल्वर ब्रोमाइड एंड AgCl सिल्वर क्लोराइड. ठीक है, सनलाइट प्रेजेंस में रखोगे, इधर भी लिख देना सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है, सेम थिंग. तो Ag बनता है और इधर Br2 निकलेगा, इधर Cl2 निकलेगा. ठीक है, सो ग्रे कलर का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट. दिस इज बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन. टू Ag का फॉर्मेशन हो सकता है, बट रिएक्शन इज वेरी स्लो एक्चुअली. ओके, so this is these are photolysis reactions, and the reactions are also used in black and white photography. ठीक है, AgCl और AgBr के decomposition को हम लोग black and white photography में यूज़ करते हैं, क्योंकि obviously photography means light का यूज़ करके light का यूज़ करके हम photo बना रहे हैं, right, we are making pictures. So ये जो photolysis reaction है, that's why they are used in that technique. Another one more reaction that can be written here is, this is hydrogen peroxide. ठीक है, वन इसको जब सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करते हो, देखते हो, तो बनता है H2O and O2. Sorry, this was balanced. Yeah, बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस नहीं है. Now it is balanced. ठीक है, so this is also one more example of decomposition of photolytic decomposition. ठीक है, fine. Okay, so see, basically in today's class we have seen two very important types of reactions, combination reaction and decomposition reactions. In those reactions we also have seen exothermic reactions and endothermic reactions, and we have seen examples also. All the examples of decomposition reactions are actually in endothermic reactions only. ठीक है, और decomposition reaction में हमने उसके parts देखे, thermal decomposition, photochemical decomposition, electrolytic decomposition. ठीक है, in the next class we will be learning more about types of reactions. We will see displacement reactions, double displacement reactions,
and we will be going towards redox reactions. Okay? And then after some time our chapter will be completed. So, if you have any doubts, you can write in the comments and ask me. I will be explaining in the next class. Thank you for today.